Another day, another agreement. Hi, I'm Ritika and welcome to the drafting series. आज हम दो अग्रीमेंट करेंगे, एक है डिबेंचर ट्रस्ट डीड और दूसरा है अंडर राइटिंग अग्रीमेंट. दिस डिबेंचर ट्रस्ट डीड इज अ वेरी लॉन्ग अग्रीमेंट, तो मुझे ऐसा लगता है इसके एक क्लॉज पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर ऑब्लिगेशंस ऑफ कंपनी, या व्हाट इज ऑब्लिगेशंस ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी, या व्हाट आर द केसेस इन विच डिफॉल्ट कैन हैपन, या ऐसे एक पर्टिकुलर क्लॉज पे क्वेश्चन आ सकता है इन डिबेंचर ट्रस्टी. पूरी डीड पे मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए. सेकेंडली वी विल डू अंडर राइटिंग अग्रीमेंट. अंडर राइटिंग अग्रीमेंट तुम ऐसे समझो एक फॉर्मेट लिखने वाले हो, वही फॉर्मेट वर्ड टू वर्ड तुम्हें फॉलो करना है. उसमें भी एकदम एक दो क्लॉजेस है कि कमीशन से रिलेटेड क्लॉजेस है और थोड़ी बहुत अंडर राइटर के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है. दैट्स इट. सो लेट्स बिगिन विद डिबेंचर ट्रस्ट डीड. पहले तो डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनाया किसके बीच में जाता है, अंडरस्टैंड दैट. डिबेंचर ट्रस्ट डीड स्टार्ट्स फ्रॉम द कंसेप्ट व्हेन अ कंपनी इज रेजिंग मनी थ्रू डिबेंचर्स. यानी company is going to appoint a debenture trustee who will take care of repayment of debentures. हम कंपनी किसी से पैसे लिए हुए हैं, हम उनको इंटरेस्ट देंगे. एवरी सिंगल टाइम वी विल गिव इंटरेस्ट. काइंड ऑफ लोन जैसा सिस्टम है डिबेंचर, यानी एक डेट के तरीके से हम काम करते हैं. सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस अग्रीमेंट. पहले किसके बीच में हो रहा है, दिस डिबेंचर ट्रस्ट डीड इज मेड बिटवीन ABC Limited, a company, and debenture trust deed in another company. Samely we will write like any other agreement. This debenture trust deed made on dash day of dash between ABC Limited, registered under Companies Act 2013, hereinafter referred as the company on one part, and XYZ Limited, registered under Companies Act 2013, having registered office at dash, hereinafter referred as debenture trustee on other part. ये तुम्हारा फर्स्ट पैराग्राफ. देन इन सेकेंड पैराग्राफ वी विल राइट what is the main business of the company. Like company was working under this and now they want to expand in some particular business and expand in some particular city too. So now they are raising debentures and for this particular transaction they are appointing debenture trustee. This is your recital parts and then common clause part. Then we will write testatum and uske niche we will write the first point. Firstly we will define what is the description, exactly why and how we are issuing the debentures. Ki what is the purpose of issuing debenture, that the company is doing expansion of business in dash dash city. This is your first point. Second point, we will write what is the period of debenture issue. Here in this case we are issuing redeemable debentures, like after a certain period of time we will repay the money back to the holders of debentures. So how we will write the second point, that a debenture shall be issued for a period of 3 years, amount to raising funds of rupees dash, redeemable along with the rate of interest of 10%. This is your another point. Then second point comes, what is the detail of charge created. Exactly, यानी debentures लेते हुए हमने कैसे पैसे दिए या क्या प्रॉपर्टी मूवेबल रखी हुई है, that we are going to talk. I am again telling on the debenture trust deed, question will not come like write whole debenture trust deed for 5, 7, 8 marks. Question will come on any one clause. आगे जो क्लॉजेस पढ़ेंगे ना उसमें पॉइंट्स है, लाइक एक क्लॉज के अंदर देर आर 5 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स. वो 3 पॉइंट्स पे तुमको एक क्वेश्चन आ सकता है. नाउ इन सेकंड पॉइंट, दैट इज डिटेल्स ऑफ चार्ज क्रिएटेड, व्हाट वी विल राइट, दैट द कंपनी क्रिएट्स फिक्स्ड चार्ज ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी एज डिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 1. इमूवेबल प्रॉपर्टी है, शेड्यूल है, तो लास्ट में शेड्यूल लिखना भूलना नहीं. With a minimum security coverage of rupees dash. Then उसमें ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे. That the debenture trustee shall have right to preserve this above mentioned property and do physical inspection also on this property. ये पूरे ट्रांजैक्शन ऑफ दिस डिबेंचर हम एक इंसान को अपॉइंट कर देते हैं या एक कंपनी को अपॉइंट कर देते हैं कि तुम इस रिलेटेड सारा काम संभालो कंपनी का. दैट इज व्हाट योर डिबेंचर ट्रस्टी इज. इंटरेस्ट अगर लेट दिया कंपनी ने लोगों को तो उसके भी आप डिबेंचर ट्रस्टी है, वो खुद के पास पैसे रख लेगा या वो डिबेंचर्स जमा कर लेगा. आगे डिफॉल्ट के केसेस भी पढ़ोगे. तुम ये सोचो, अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड कीप दिस इन योर माइंड, दैट एनीथिंग रिगार्डिंग डिबेंचर ट्रांजैक्शन विल बी डन बाय डिबेंचर ट्रस्टी. दैट्स द होल अग्रीमेंट्स पर्पस. अब आता है अनदर क्लॉज, दैट इज पर्टिकुलर्स ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंटमेंट. अभी हम इसमें लिखेंगे कि हमने इसको अपॉइंट किया, क्या काम के लिए अपॉइंट किया, कितने टाइम के लिए अपॉइंट किया, ये सारी चीजें हम इसमें लिखेंगे. वापस एक बार कंसेप्ट समझ लो. कंपनी लोगों से पैसे लेती है, उस पैसे के ऊपर वो कंपनी इंटरेस्ट देती है, जैसे बैंक करती है वैसे ये पैसे कंपनी एक्सपांशन के लिए लेती है, उनके कोई भी पर्पस फुलफिल करने के लिए लेती है. तो डिबेंचर ट्रस्टी का मेन काम क्या होता है, लोगों को टाइम पे इंटरेस्ट देना. I'll say in English again. What is the main purpose of debenture trustee is to give interest and repayment of money on the time, on the due date, wherever it is mentioned. This is first and important detail about appointment of debenture trustee. Second point we will write, if he wants to resign from this whole position of debenture trustee, he has to serve a prior notice of 1 month
and then only he can resign from this particular position, as this is a very crucial and important role for company and holders also. अब ये सब तो समझ लिया कि इसका काम क्या है, but what exactly debenture trustee gets? He gets commission to do this particular thing, like outsourcing we do. And this is again we will write in this point that the debenture trustee will be entitled a commission of 1%, 2% or whatever percentage you want to write. This is one clause. On this clause एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. Another clause comes of default. कि जो ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये डिबेंचर ट्रस्टी कब सेल कर सकता है? समझो कंपनी ने टाइम पे इंटरेस्ट नहीं दिया. When company doesn't give interest on time to debenture holders, debenture trustee can sell this property and ये समझो कि एक सिक्योरिटी की तरीके ये प्रॉपर्टी रखी हुई है. सो ही कैन सेल दिस प्रॉपर्टी इफ कंपनी इज नॉट डूइंग हिज थिंग ऑन परफेक्ट बेसिस. या सेकंड पॉइंट, व्हेन कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन बिजनेस, कंपनी बंद हो गई तो प्रॉपर्टी रख के क्या ही करें. या कंपनी के ऊपर वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ गया है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स. व्हाट आर द केसेस द इमूवेबल प्रॉपर्टी मेंशन्ड इन शेड्यूल कैन बी सोल्ड बाय डिबेंचर ट्रस्टी? फर्स्ट, इन केस the company is not paying interest. Second, when there is winding up order on company. Third, when company has stopped carrying his businesses or ceased to carry his businesses. And fourth, company violates any condition of the prospectus that they have sent to debenture holders. इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है. अब आते हैं अनदर पॉइंट कि क्या कोवेनेंट्स लगा रहे हैं. ट्रस्टी लगाता है कंपनी के ऊपर, बट हाउ वी विल राइट दिस पॉइंट? Anywhere you are writing covenants and undertaking, you have to write little घुमा फिरा के. How we will write this point? The company covenants the trustee as follow. ट्रस्टी लगा रहा है कंपनी के ऊपर कोवेनेंट्स यानी कंडीशंस. लिखा कैसे गया है? अगेन आई एम रिपीटिंग दैट द कंपनी हियर बाय कोवेनेंट्स विद द ट्रस्टी एज फॉलोज. पहले टैक्सेस टाइम पे पे करेगी, कंपनी रजिस्टर ऑफ बुक्स संभाल के रखेगी, कंपनी विल इंश्योर इंस्पेक्शन इज हैपनिंग ऑन द राइट पीरियड ऑफ टाइम, कंपनी विल पे डिविडेंड on whatever duration they are paying. The company also will forward and publish all the reports that they have to do in accordance with the law. This is your another point. गलती से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है राइट होल डिबेंचर ट्रस्ट डीड. एवरी क्लॉज में यू शुड राइट जस्ट 1 or 2 points एंड मैक्सिमम 2 pages का अग्रीमेंट बना के यू शुड एंड इट अप. This is what your debenture trust deed is. But in the end, remember to write schedule in witness whereof and lastly signature of witnesses and signature of party. As there are 2 parties, both are companies. So how we will write? ABC Limited, XYZ Limited, and for and on behalf of dash, for and on behalf of dash. Another agreement for the day is underwriting agreement. Now in this you have to follow the exact format how it is written. वर्डिंग्स इधर उधर करोगे इट्स फाइन, बट फॉर्मेट लिखना जरूरी. जैसे लेटर का फॉर्मेट हमें याद करना ही होता है, वैसे इसका फॉर्मेट भी हमें ध्यान में रखना है. पहले तो ये भी समझ लो कि व्हाट इज अंडरराइटिंग अग्रीमेंट. कंपनी इज इशूइंग एनी शेयर्स और ऑफरिंग शेयर्स at that time to achieve the minimum subscription limit, that is 90% in case of shares. Company appoints underwriters. Underwriters are those persons who help in achieving this minimum subscription limit of 90%. In case the shares does not achieve this limit, so whatever pending amount is there, whatever pending percentage of the minimum subscription is there, underwriter gets those, and what he gets in return, he gets commission in return. Again I am telling in Hindi. अंडरराइटर कौन से लोग होते हैं? ऐसे लोग जो एक्चुअली कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट अचीव करने में हेल्प करते हैं. कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है तो 90% शेयर्स उनके सब्सक्राइब होने चाहिए, बट अगर सब्सक्राइब नहीं हुए तो जितनी भी अमाउंट या लिमिट या रेट बचता है वो सारे अंडरराइटर सब्सक्राइब करते हैं और उनको क्या मिलता है इन रिटर्न? कमीशन मिलती है. दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ अंडरराइटिंग. अब इस साइड पे हम क्या लिखेंगे? नेम एंड एड्रेसेस ऑफ ब्रोकर्स हु हैव अग्रीड टू एक्ट एज अंडरराइटर्स. दिस इज ऑन दिस साइड. Then on this side what we will write? रेफरेंस नंबर लिखेंगे, 2 लिखे. लेटर के फॉर्मेट जैसा है, पुराने जमाने का लेटर लिख रहे हो ये सोच के लिखना. अब लिखना 2 के नीचे दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके नीचे नेम एंड एड्रेस ऑफ दी कंपनी. फिर हम लिखेंगे सैल्यूटेशन डियर सर. फिर लिखेंगे सब्जेक्ट नहीं आ रहा है इसमें हम लिख रहे हैं दी प्रपोज पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स. फिर हमारा चालू हो जाता है मेन बॉडी. इसकी थोड़ी लैंग्वेज अलग है, लैंग्वेज ध्यान देना, 1-2 बार सुनना, एक बार लिख के देखना, यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल क्रैक दिस कोड अगेन. इसकी आती है मेन बॉडी. वी हियरबाय रिकॉर्ड द टर्म्स ऑन विच हियरइन आफ्टर रेफर्ड एज अग्रीड टू अंडरराइट इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच आउट ऑफ टोटल इशू ऑफ डैश इक्विटी शेयर्स ऑफर्ड टू पब्लिक एट डैश रुपीज पर शेयर. हमारा फर्स्ट पैराग्राफ थोड़ा लैंग्वेज ट्रिकी है, अच्छे से सुनो. फर्स्ट पॉइंट हम ये रजिस्ट्रेशन का पॉइंट लिखते हैं कि ये जाता है आरओसी के पास अंडरराइटर्स का अग्रीमेंट, कंपनी और अंडरराइटर के बीच वाला जो अग्रीमेंट है वो, दैट द प्रोस्पेक्टस अप्रूव्ड बाय अंडरराइटर शैल बी डिलीवर्ड टू आरओसी डैश ऑन एंड बिफोर डैश. अब सेकंड क्लॉज में हम लिखते हैं कि कब ये अंडरराइटर सब्सक्राइब करेंगे शेयर्स.
और कब ये शेयर्स कम पड़ने वाले, ये सारी हम फॉर्मेलिटीज वी विल राइट इन दिस क्लॉज। सेकेंड क्लॉज सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है। In case of closing of subscription list, equity shares offered to public are undersubscribed. You, within the 14 days of this said closure, intimate the underwriters as to the number of securities to be underwritten, and the underwriter shall within 21 days underwrite the required number of equity shares and pay the money in respect of said shares. ये तुम्हारा second clause है, यही सबसे important clause है। 14 days में पता चलेगा, 21 days में underwrite कर लेगा। Third clause, following factors shall be considered by underwriters before underwriting shares. फर्स्ट कि उसको कमीशन मिलेगा इतना इतना %, एक्चुअल शेयर्स जो उसने अंडरराइट किए विचेवर इज हायर उसके बेसिस पे कमीशन मिलेगा। सेकंड, उसने जितने शेयर्स अंडरराइटिंग के लिए बोले हैं उसके ऊपर वो शेयर्स अंडरराइट नहीं करेगा। और थर्ड, और कोई केस में अगर उसको कमीशन मिल रहा है तो हम वो भी लिखेंगे। एंड कमीशन शैल बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू कंप्लीशन। ये तुम्हारा लास्ट पॉइंट। उसके बाद हम लिखेंगे, एकदम खत्म हो गया अग्रीमेंट ऑलमोस्ट। प्लीज एक्नॉलेज दिस लेटर एंड इंटीमेट योर एक्सेप्टेंस बाय डैश डे ऑफ डैश, थैंकिंग यू योर फेथफुली फॉर डैश। ये तुम्हारा है अंडरराइटिंग अग्रीमेंट। I hope you have understood both the agreements. Again, 2 agreements for the day. Keep hustling and keep praying and subscribe to my channel. Thank you so much.